Sir, it is 11:30 now. Yes, sir. You can start, sir. You can start. Yeah. Patil sir is not on. Okay, sir. You can start. Sir is there. Yeah. Yeah. Please start. Yes. Good morning to everyone present here on screen. Good morning. I'm sorry to say, but only one parent has not joined this meeting, sir. All parents and teachers are with us on the screen. Yesterday, this meeting was scheduled at 11:30, but due to preoccupation of the officers of the regional office, we could not conduct this meeting. And today, this meeting is scheduled at 11:30, and exactly at 11:30, we are starting this meeting. One leftover parent has also joined this meeting, sir. So before start this meeting, I welcome first the most respected Deputy Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sangathan Mumbai Region, Shri S.P. Patil sir. I also welcome to worthy Assistant Commissioner, Shri Lale sir, R.K. Lale sir. And in the today's session, the questionnaire session will be taken by the HM of Kendriya Vidyalaya Girinagar Pune, Mrs. Leena Bhagwat. I welcome you, madam. Similarly, I welcome to all the dear parents and lovely students of this Kendriya Vidyalaya, especially from class 1. Here we have the team of teachers, 3 primary teachers, 1 music teacher, and myself, the principal of the Kendriya Vidyalaya. Sir, we are having the 6 primary seats sanctioned, but only 3 primary teachers are working. We have appointed another primary teacher on contractual basis. So total 4 teachers are handling the primary classes, the online classes, sir. Sir, this is the real time devoted by you to us, because here on this particular meeting, the students and the parents, the selected students and the parents of this Vidyalaya at least, they will get a chance to interact with DC sir, AC sir, and one of the renowned HM of our region. So this is the privileged time for everyone, sir, because I feel we will get some good suggestions so that whatever activities we are conducting in this Vidyalaya, especially in the primary section, may get some boost so that we can do wonderful job and we can stand with other Kendriya Vidyalayas, being our school is running in the temporary shade, sir. Once again, I welcome the DC sir, AC sir, HM madam, your parents, the lovely students, and the teachers of this Vidyalaya. Thank you, sir. Thank you, sir. So, with your kind permission, may I start? Please start, madam. Yeah, thank you. इस आजादी के दौर में बंद रहने को हम जो मजबूर हैं, कैसे कहें नहीं राह दिखेगी, हमको करना कोई उपाय जरूर है। कुछ तो जिद्दोजहद दिखानी पड़ेगी, आने वाली पीढ़ी के खातिर हमको प्रत्यक्ष रूप से हो या परोक्ष रूप से ज्ञानदीप के आगे तो हर अंधेरा दूर है। दुनिया बदली है, हम भी बदलेंगे, आज गिरे हैं कल फिर संभलेंगे, शिक्षा के हम साथी हैं, शिक्षा की जोत जलाएंगे, ये हमारा अभिमान है, ये ही हमारा गुरूर है, यही हमारा गुरूर है। Most Honorable Shri S.P. Patil sir, in charge Deputy Commissioner Mumbai Region, Honorable Shri R.K. Lale sir, Assistant Commissioner Mumbai Region, respected Shri J.K. Ramteke sir, Principal K.V. Yavatmal, learned teachers, parents and dear little students. Good morning and hearty welcome to one and all. Time never stops, and as the entire world went under this grip of pandemic, the schools were closed. But we learned to move with the time, overcome the situation with available resources, and switched to online classes. How far have we been successful, and what steps further can we all take to reach all the students to satisfy their educational needs till they are physically back to the school? So let's share our experiences and suggestions. And in this sequence, I would like to interact with the parents of class 1.
So welcome to all the parents once again. My first question for the parents is, how does your ward enjoy the online teaching and learning? मैं चाहती हूँ कि अभिभावक अपने विचार इस प्रश्न पर व्यक्त करें कि ऑनलाइन टीचिंग में आपके बच्चे सबसे ज्यादा किस चीज को पसंद करते हैं, क्या एंजॉय करते हैं? अभिभावक प्लीज. एनी ऑफ द पेरेंट कैन स्टार्ट. ऑनलाइन टीचिंग में बच्चों को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? हाँ अनिल सर प्लीज. गुड मॉर्निंग मैडम. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. ऑनलाइन टीचिंग में पेरेंट्स एंजॉय करते हैं, अच्छा एंजॉय करते हैं, क्योंकि स्कूल जाने का जो एंजॉयमेंट है वो नहीं मिल रहा है उनको. ऑनलाइन टीचिंग घर के घर तो वो एंजॉय कर रहे हैं, तैयार होके क्लास अटेंड करना और फिर खेलने जाना, यानी 1-2 घंटे जो भी स्कूल होती है तो 2 घंटे करते हैं स्टडी और उसके बाद में भी थोड़ा करते. इनमें थोड़ा कम समय होने की वजह से उनमें थोड़ा सा ये है कि कम हुआ है, क्योंकि हम देखते हैं कि स्कूल में उनका खेलना कूदना, नए दोस्तों से मिलना, ये बातें भी होती है. तो ऑनलाइन में सिर्फ वर्चुअली वो दोस्तों से मिलते हैं, फिजिकली वो मिल नहीं पाते, तो उसके वजह से. लेकिन एंजॉय कर रहे हैं. ये भी दिन उनकी जिंदगी में एक यादगार समय रहेगा. ये जो कालावधि चल रहा है बहुत ही यादगार समय रहेगा और आगे चलकर वो इस समय का बहुत ही अपनी प्रोग्रेस के लिए बहुत ही लाभ लेंगे, ऐसा मुझे लगता है. धन्यवाद. हाँ अंकल जी बोलिए. गुड मॉर्निंग. आई थिंक डिस्कनेक्ट हो रहा है मेरा बीच में. करते हैं ऑनलाइन क्लास में. एनी ऑफ द पेरेंट्स? हाँ नमस्कार मैम. हेलो. नमस्ते. हाँ विजेंद्र सिंह बोलिए. अनिल जी की तरफ से माइक. हाँ थैंक यू मैम. हाँ विजेंद्र जी बोलिए प्लीज. वैसे तो बच्चे ऑनलाइन क्लास अच्छी तरह से करते हैं. हेलो. बोलिए आपकी आवाज आ रही है सर बोलिए. फिर भी स्कूल अगर चालू होती तो अच्छा होता. अभी ये परिस्थिति देख के अभी जो कोरोना का पीरियड है थोड़ा कम हो रहा है. बच्चा किस चीज से ज्यादा एंजॉय कर रहा है ऑनलाइन क्लास में? पढ़ाई कर रहा हो. ये जो ऑनलाइन वर्कशीट वगैरह है वो छुड़ा रहे हो बच्चा जो है उनको टीचर जो है वो भी पसंद है. बोल तो ये क्लास कब है ज्वाइन करने को वो उत्सुक है. करते हो खुशी से करते हो. पढ़ाई भी कर रहे हैं उतनी नहीं फिर भी अच्छा है. थैंक यू सर. हाँ और कोई अभिभावक? हाँ अनिल तिरमिरे जी. गुड मॉर्निंग मैडम बोलिए. गुड मॉर्निंग. मुझे लगता है मैडम उन्होंने क्या एंजॉय तो कर रहे हैं क्लासेस, पर जैसा जो स्कूल में बैकग्राउंड होता है वैसा नहीं का घर पर नहीं होता है. और वो जो करते ना जब नहीं क्या क्लासेस शुरू होते तो उनका ध्यान नहीं का क्लासेस से इधर उधर ज्यादा जाता है मैम. तो मेरे ख्याल से नहीं क्या स्कूल में जैसा होता है ना वैसा घर पर नहीं हो रहा है. वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं. हम करते हैं उनको पढ़ाई करने के लिए, फिर भी वो जैसा चाहिए वैसा करते नहीं है मैम घर पर. थैंक यू. They are missing the environment, the school environment they are missing. Yes. हाँ स्कूल को बहुत मिस कर रहे हैं मैम. ओके थैंक यू. थैंक यू. और कोई अभिभावक इस पे बोलना चाहेंगे? What their child is enjoying the most? हाँ yes sir please. हेलो. बोलिए सर. गुड मॉर्निंग. हाँ एंजॉय. मेरी त्रिशा नाम है मेरी कर रहे हैं इसमें क्लासेस का जो वर्कशीट वगैरह योगेश सर वो अच्छा वो ऑनलाइन के पूरी वो कहते हैं जैसे टीचर का जो डर रहता था वो नहीं है. भी नहीं है तो
भी थोड़ा पैकेज चल रहा है, देखिए कंपनी की तरफ अच्छी बात है। तो जैसे ऑनलाइन क्लासेस हो तो आगे क्लास भी उसमें ग्रुप जाएगा, क्लास चालू हो। Okay, thank you, sir. So your child is enjoying the worksheet. Thank you. Okay, please keep your mic on the mute mode, sir, so that I can interact with the other. Parents of Hina. Yes, good morning, ma'am. Good morning. Yes, ma'am. मैम हमारे बेटे का नाम तफज्जुल है। बोलिए। Yes, and मैम तफज्जुल is very enjoying these online classes. बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा है मैम। वो टीचर्स दिखते हैं, उनके क्लास के फ्रेंड्स दिखते हैं, उनको एंजॉय होता है। वही टाइमिंग है तो भाई बस उस टाइमिंग में बराबर अपने को क्लास के लिए ज्वाइन होना है, स्टडी करनी है। सर भी, उनके टीचर्स लोग भी उनको बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। जब तक उनको समझ में नहीं आता वो समझाते हैं बहुत अच्छे से, और बहुत अच्छे से मतलब वो वर्कशीट देते हैं। सर टीचर्स लोग वर्कशीट सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से। दे कैन एंजॉय मैम। अब कैसा है कि स्कूल नहीं था, लॉकडाउन था, लेकिन उसके बाद में भी टीचर्स ने बहुत सारा एफर्ट्स लिया है, स्कूल ने एफर्ट्स लिया है, और साथ में पेरेंट्स लोगों ने भी एफर्ट्स किया है मैम कि बहुत अच्छे से ये जो ऑनलाइन क्लासेस है ये शुरू है, क्योंकि बच्चे लिंक में है पढ़ाई के, दैट इज इम्पोर्टेंट। और स्कूल ये तो स्कूल का इन्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी दे कैन एंजॉय मैम। मैडम आप स्क्रीन पर आ सकते हैं? मैडम आप स्क्रीन पर। हाँ। यस सर, यस। दे कैन एंजॉय मैम। बहुत अच्छे से स्कूल भी एफर्ट्स ले रहा है, टीचर्स लोग भी बहुत अच्छे से समझाते हैं, बच्चे भी अच्छी तरह से समझ रहे हैं। Yes, we are very satisfied, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. And we cannot forget the efforts taken by the parents also. Yes. Yes, we are very thankful to. Yes, we are very thankful to you people all, because unless your contribution, it's really very difficult for us too. Thank you, ma'am. Any other parent would like to interact on this regard? What their child is, what are they enjoying in the online classes? और कोई parents इस पे बोलना चाहेंगे कि बच्चा क्या सबसे ज्यादा पसंद करता है ऑनलाइन क्लास में? हाँ अनन्या, प्लीज। यस सर। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नमस्ते सर, बोलिए सर। अनन्या भी अच्छा एंजॉय कर रही है ऑनलाइन क्लासेस में। हाँ बोलिए सर, बोलिए। हाँ, और जैसे रेगुलर स्कूल होता है तो जो कुछ चीजें उनको पहले जो नहीं होता है वो समझ नहीं आता था, जब भी ऑनलाइन क्लासेस की वजह से जैसे ये वर्कशीट है और ये मोबाइल का जो भी उनको PDF फाइल वगैरह जो आता है, ये एक नया एक एक्सपीरियंस उनको मिला है जो अगर रेगुलर स्कूल होता तो नहीं मिलता था। और स्कूल में तो जाके फिजिकली सब करते थे, तो अभी ये नया चीज भी उनको, नया जो अपनी एक्टिविटीज है उसकी वजह से वो जरा यूजर फ्रेंडली भी हो गए। कुछ चीजें उनको नई चीजें सीखने को मिल गई ये इसकी वजह से। हाँ सर। और बाकी सर सबका मतलब अभी नए हैं सभी बच्चे फर्स्ट क्लास में, अभी तो कंटिन्यू हो जाएगी क्लासेस तो। Yes sir, we too do expect that the situation becomes normal very soon and they'll be back to the school with their friends, with their classmates and teachers. Thank you for sharing your views sir. Any other parent would highlight on this? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, बोलिए। मैम वो ऑनलाइन में बहुत एंजॉय कर रहा है मैम, उसको वर्कशीट सॉल्व करने में वगैरह बहुत ही अच्छा लग रहा है मैम। थैंक यू। बस वो प्ले Any other parent would like to interact or please? Thank you sir, thank you. Okay, so let's move on to the next question. See, they are they're not used to such situation, but last few months they are now been at home and going through the online classes. But what are they missing the most? What they had enjoyed in the pre-primary education? क्या ऐसी चीज है जो बच्चे मिस कर रहे हैं ऑनलाइन क्लास में? So पेरेंट्स प्लीज इस पे थोड़ा सा अपने विचार बताइए कि ऐसी कौन सी चीज है जो वो मिस कर रहे हैं। अगर आप इस पे और भी कुछ बोलना चाहते हैं तो।
कोई बोलना चाहते हैं इस पे? व्हाट आर दे मिसिंग इन द ऑनलाइन क्लासेस? अ फ्यू आई गॉट। यस हिना, हाँ बेटा आप बोलिए मैम। यस मैडम, वो मिस कर रहे हैं कि स्कूल के अंदर जो उनके स्पोर्ट्स होते हैं वो स्पोर्ट्स मिस कर रहे हैं, फ्रेंड्स लोगों के साथ खेलना मिस कर रहे हैं, और उनको ड्राइंग बहुत पसंद है। ड्राइंग। अच्छा तफजुल कुछ बोल रहे हैं मैम, आप प्लीज सुन लीजिए। यस, से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम हम ये बोल रहे थे कि जब आप टीचर्स हमको वर्कशीट देते हैं यूनिट 1 में ब्रेक में, तो जब उसमें अगर ड्राइंग है तो बच्चे को बहुत इंटरेस्टिंग आता है। ओके ठीक है आपके मैडम और सर भी अदर पेरेंट वुड लाइक टू इंटरैक्ट कि बच्चे आपके क्या मिस कर रहे हैं ऑनलाइन क्लास में? हाँ अनन्या, आपके पापा बोल। यस सर। हाँ मैम, इनको सभी बच्चों के साथ बैठ के वो जो खेलना होता है, उनका टिफिन शेयर करने का जो पार्ट होता है, जो बीच में इंटरेक्शन होता है, उनकी कुछ जो अड़चन है किसी को पूछ के हम लोग समझाते हैं तो अलग होता है, टीचर समझाते हैं तो अलग होता है, दोस्तों में बात करके जो सोल्यूशन निकलता है वो मिस कर रहे हैं। Exactly, the peer group they are missing. Correct sir. Yes, we can understand that. हाँ शिल्पा मैडम, आप भी कुछ बोलना चाहती थी, आपने माइक ऑन किया था बीच में, बोलिए मैम। हाँ नमस्ते मैम। नमस्ते बोलिए। स्कूल को मिस कर रही है क्योंकि स्कूल का एटमॉस्फेयर घर पे नहीं मिल रहा है उसको। जैसे टीचर के साथ बात करती है, कभी नेटवर्क में प्रॉब्लम आ जाता है तो बात ही नहीं कर पाती। तो पढ़ती है वो, लेकिन कभी कभी वो बच्चों के लिए उनके फ्रेंड को बोलती ये मेरी फ्रेंड है, मैं कब मिलूंगी इससे, ये मेरी फ्रेंड है, ये तफद्दुल, ये त्रिशा, उनकी जो फ्रेंड है कि उसको मिस कर रही है, और स्कूल के टीचर को मिस कर रही है। वो टीचर के साथ कब बात करेंगे करके वो, और कब हमें मुझे पास से पढ़ाएंगे वो स्कूल में जाके। आपकी बात सही है। हाँ, they are missing the teachers and the classmates. Yes, very true. Any other parent would like to interact on this? और कोई? हाँ ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। जिस तरह बच्चे एंजॉय कर रहे हैं तो कुछ डिफिकल्टीज भी वो फेस कर रहे होंगे इन ऑनलाइन क्लासेस में, तो मैं चाहती हूँ कि ऑल द पेरेंट्स प्लीज डू इंटरैक्ट ऑन दिस कि व्हाट डिफिकल्टीज योर चाइल्ड इज फेसिंग इन दिस ऑनलाइन क्लास व्हेन दे आर गोइंग थ्रू द ऑनलाइन क्लासेस। उनको क्या किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? यस पेरेंट्स, किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? बिकॉज दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द फेस टू फेस इंटरेक्शन जो वो स्कूल में बच्चे और ऑनलाइन टीचिंग में डिफरेंस है। सो आप शेयर कीजिए कि क्या मुश्किल है, उनको क्या दिक्कतें आ रही है। कोई भी बोल सकते हैं इस पे। हेलो, हाँ मैडम बोलिए प्लीज। यस यस। हाँ मैम, हाँ जो ऑनलाइन क्लासेस होती ना मैम, तो सर जो पढ़ाते वो तो अपना हम उनका बेस्ट देते हैं, पर बच्चों को जैसा चाहिए वैसा समझ में नहीं आता है। जैसा स्कूल में समझना आता है वैसा समझ में नहीं आता, और कभी कभी खबर नहीं कि इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है, क्योंकि वो उनका जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में ना हो, इसलिए दिक्कत होती है कभी कभी समझने के लिए। कभी कभी नेट का प्रॉब्लम आ जाता है तो उसमें भी दिक्कत होती है। यस यस, सही है, क्योंकि अगर स्कूल में फेस टू फेस इंटरेक्शन बच्चे और टीचर वो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन भी ये स्कूल में जब स्कूल होता है तभी नहीं क्या सभी बच्चे घुल मिल कर रहते हैं, और सर से भी घुल मिल कर रहते हैं, फिर जो वो पढ़ाते हैं वो ध्यान में रहता है, पर ऐसे ही नहीं क्या उनका जैसा चाहिए उनका संपर्क नहीं होता ना, इसलिए वो नहीं क्या डरते हैं, घबरा जाते हैं, सर क्या बोल रहे कभी कभार उनको समझ में भी नहीं आता, ऐसा होता है मैम। Okay, thank you ma'am. Anybody else wants to share on this? हाँ, कनक के पापा कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? What difficulties your child is facing, sir? Any difficulty if you have, you can share. Difficulty अभी उनका एज ही ऐसा है मैडम जो कंसंट्रेट पूरा कर ही नहीं पाते, यानी एज ही वैसा है ना उनका, यानी फुल टाइम वो कंसंट्रेट कर नहीं पाएंगे, इंटरेक्शन उनका हो नहीं रहा है या टीचर के साथ ज्यादा, यानी जो फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है ना वो नहीं हो पा रहा है। इसके वजह से ग्रास्पिंग भी उतना ज्यादा नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह जब अभी लाइव क्लासेस होंगी
तब मे भी उनका इंग्लिश है, मैथ है, क्या इंटरेक्शन से फेस टू फेस करके वो बढ़ेगा शायद। पर ऐसा तो अभी लग रहा है कि जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा अभी। यानी टीचर एफर्ट ले रहे हैं, पेरेंट्स एफर्ट ले रहे हैं, बच्चे भी एफर्ट ले रहे हैं, पर अभी उनका एज और वो इंटरेक्शन वो किधर तो भी नहीं, क्या ये हो रहा है अभी, थोड़ा मिसमैच हो रहा है थोड़ा ये ऑनलाइन क्लासेस से। Yes, sir. We can understand that. Yes, they are too small to have this experience, and this is a totally new experience for them at this very tiny age also. Yes, thank you, sir, for sharing. Any other parent would like to share about this? Any difficulty that ward is facing? और कोई अभिभावक? हाँ, अनन्या के पापा बोलना चाहते हैं? Yes, please. मैम, ये ऑनलाइन क्लासेस में क्या हो रहा है ना कि जब म्यूट नहीं होता है ना, तो सब बच्चों का जब कंफ्यूजन हो जाता है, एक साथ बात होता है तो उसको समझ में नहीं आता कि वो कौन क्या बात कर रहा है। तो अभी सबके बच्चे कभी कभी कोई म्यूट कर रखते हैं, कभी नहीं रखते हैं, तो एक साथ जब आंसर पूछते हैं सर लोग कि इसका जवाब बताइए, तो एक साथ सब बात करते हैं तो समझ में ही नहीं आता कि किसने जवाब दिया और किसका सही आया। और इनको स्क्रीन पे पूरे बच्चे तो एक साथ दिखते नहीं है, तो सर लोगों को भी देख नहीं पाते कि हर कोई अटेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये लोग क्या करते हैं, उस टाइम पे अगर दूसरा कुछ बात कर रहा है तो ये अलग जगह पे देखना शुरू कर देते हैं, तो वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। ऐसा कुछ होता है तो हमेशा बैठना पड़ता है पेरेंट को, या तो मुझे या इसकी मम्मी को कंटिन्यू। अगर हम लोग 10 मिनट के लिए भी यहाँ से निकल गए तो इसका इधर उधर देखना शुरू हो जाता है फिर। तो ये जरा ज्यादा अटेंशन हमको भी करना पड़ रहा है, और टीचर लोगों को भी ज्यादा सब स्क्रीन पे देख नहीं पाता है कोई भी। अगर पढ़ा रहा है तो एक तो स्क्रीन को देखेगा या बच्चों को देखेगा, तो हर बच्चे पे नजर नहीं जाती है। अटेंशन Very true, sir. Yes, because the class environment and the online teaching has this difference. Yes, we can make it out that, sir. Thank you, sir. Anyone else who wants to share the difficulties faced by the ward? हेलो मैम। नमस्ते, बोलिए। हाँ, वो इंजॉय कर रहा है रिधिमान, लेकिन क्या है कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम होता है कि मैम पढ़ने के लिए बोलते हैं या फिर कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं तो सभी बच्चे अनम्यूट करके चिल्लाते हैं, हमें बताना है, हमें बोलना है। तो उसे पूछते हैं तो वो चुपचाप से बैठ जाता है कि बाकी बच्चे चिल्ला रहे हैं, तो फिर वो उसका कंसंट्रेशन नहीं रहता। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो हाँ मैम, तो अनम्यूट ना करे और ऐसे हाथ, जिसको बोलना है वो हाथ ऊपर करे, या फिर अगर हो गया तो थंब दिखाए, ऐसा कुछ बोलेंगे बच्चों को या फिर पेरेंट्स को तो अच्छा होगा। Thank you, ma'am. Yes. We truly agree with this because students are really very active, they are very energetic and everyone wants to share. So इस चीज पे जरूर हमारे शिक्षक भी ध्यान देंगे और अभिभावक भी contribute करेंगे। Yes, thank you very much, ma'am. So let's move on to the next question. After the difficulties, let's interact on the point that how parents can contribute. Just now, madam said this one of the contribution. Yes, as parents are sitting with the children, so they can contribute in this regard also. But what else? How parents can contribute in the online classes? Please come up. Parents अपना contribution online classes के लिए कैसे दे सकते हैं? कोई इस पे अपना विचार साझा करना चाहता है? Any parent? हाँ, yes sir. हाँ, बोलिए सर। पेरेंट्स बच्चों के साथ में बैठकर उन्हें ऑनलाइन क्लास ठीक से करने के लिए मदद कर सकते हैं, और जो भी होमवर्क बताया जाता है टीचर्स की तरफ से, तो होमवर्क बच्चों से कंप्लीट करने के लिए भी उनको बताना होता है। नहीं तो क्या होता है कि बच्चे होमवर्क के इधर ध्यान ही नहीं देते, फिर दूसरे दिन जब वो क्लास होता है तो फिर होमवर्क रह जाता है। तो पेरेंट्स अपनी ओर से बच्चों का होमवर्क कैसे कंप्लीट किया जाए वो बात एक पूर्ण कर सकते हैं। धन्यवाद। Thank you sir. Yes, we do agree with this. One side on the teachers and the other side on the parent equally can contribute and make this में आता है या कुछ नहीं समझ में आता है तो फिर हम उनको समझा देते हैं और फिर उनके होमवर्क करने में हम उनको बताते हैं कि ऐसे से ऐसे करो करके। इस तरीके से हम कंट्रीब्यूट करते हैं।
Thank you, ma'am, for that. Yes, parents do have to give some time to their children at home because now they are spending the time with you. So thanks for that. Anyone else wants to share? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Please बोलिए. सर जैसे क्लास में कैसे ब्लैक बोर्ड पे मैथ्स के एडिशन सब्सट्रैक्शन बराबर से समझ में आते हैं, लेकिन कैसे ऑनलाइन में उतना उनको समझ में नहीं आता स्क्रीन पे कैसे क्या, तो हमको सिर्फ उनको नोटबुक में या अपने घर पे एक ब्लैक बोर्ड छोटा लेके चौक से जैसे स्कूल में जैसे सर टीचर लोग पढ़ाते वैसे हम अगर उनको पढ़ा सकते हैं, पढ़ाते हैं हम वैसे भी अगर पढ़ाते तो उनको थोड़ा स्कूल का भी एटमॉस्फेयर के जैसा लगेगा और ब्लैक बोर्ड से हम भी उनके एडिशन कैसे होता है, सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, ये भी हम पढ़ा सकते हैं. Thank you, sir. Thank you for your contribution, sir. Anyone else, or shall we move on to the next one? Okay, so my next question would be, parents, please interact how schools can help you and the students to improve these online classes. What school should do for this? If you can suggest something. What contribution, what else the school can do for the betterment? पेरेंट्स, आप स्कूल से भी आपकी और भी कोई अगर अपेक्षाएं हैं तो प्लीज शेयर कीजिए. एनीवन? मैडम वर्कशीट बढ़ाना चाहिए प्लस थोड़ा एनिमेशन वगैरह रहे, यानी कार्टून प्लस जो एनिमेटेड टीचिंग रहता है थोड़ा, यानी टीचर बहुत ज्यादा एफर्ट ले रहे हैं पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे ना बच्चे, तो एनिमेशन वगैरह कुछ रह के यानी कुछ ऐसा टीचिंग मेथड अगर रहा तो फिर यानी उनके दिमाग में भी जाएगा, कंसंट्रेशन भी ज्यादा बढ़ेगा उनका, वो कुछ तो भी ऐड करना चाहिए वैसा. Thank you, sir. Yes, we'll make a note of this. Thank you. Anyone else wants to share? स्कूल आपकी और क्या मदद कर सकता है ताकि हम बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान कर सके थ्रू दिस ऑनलाइन मोड? और कोई पेरेंट्स इस पे बोलना चाहेंगे? यस, ओके, तो लेट्स मूव ऑन. हाँ मैम बोलिए. यस मैम. मैम अगर जब ऑनलाइन क्लासेस शुरू रहती है, हेलो, तो बोलिए मैम, आपकी आवाज सुनाई दे रही है. ऑनलाइन क्लासेस जब शुरू रहती है तब सभी के ये स्पीकर्स अनम्यूट रहते हैं मैम, तो टीचर से कहिए कि वो म्यूट करके रखे, या तो फिर पेरेंट्स लोगों को ऐसी इंफॉर्मेशन दे, अपने बच्चों के साथ में बैठकर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि पढ़ाई में समझ में नहीं आता मैम, सब गड़बड़ करते हैं तो कुछ भी समझ में नहीं आता ठीक से. तो यही रिक्वेस्ट है कि टीचर. Thank you. Yes, teachers are with us and your suggestions are valuable. So they all are making note of it. Thank you, ma'am. And I thank all the parents for their valuable interaction. Now let's move on to the teachers of class 1. So teachers, I want to know, apart from not being able to see all the students of your class face to face right from the beginning, then what is the thing that bothers you the most in the teaching learning process? पंकज जी, आपका माइक थोड़ा म्यूट मोड पे रखिए. पंकज जी. जी मैडम, मैं ही बोलूंगा टीचर्स के साइड से. अच्छा, ओके, सो प्लीज शेयर योर व्यूज. व्हाट बॉदर्स यू द मोस्ट? गुड मॉर्निंग, बोलिए. जैसे मैडम अभी ऑनलाइन टीचिंग तो ठीक है, अभी कोई रास्ता नहीं था, सब लॉकडाउन था, तो टीचर्स ने रास्ता निकाला, मतलब सभी बच्चों के लिए ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शुरू होगी. लेकिन जैसे हमें पता है जैसे 5 उंगलियां सेम नहीं होती है, वैसे सेम बच्चे जो है सेम नहीं होते सभी बच्चे. तो जैसे हमें पता है कि कुछ बच्चे एक्टिव रहते हैं और कुछ बच्चे एक्टिव होके भी वो ऑनलाइन टीचिंग प्रोसेस में एक्टिव नहीं हो पाते, क्योंकि वो बहुत देखा है ना, उनके जो बाकी फ्रेंड्स हैं उनको देखा है, क्योंकि जगह अगर फेस टू फेस अगर मोड में होता है तो बच्चे अडॉप्ट कर लेते हैं, फेमिलियर हो जाते हैं अपने बच्चों से, स्कूल से, टीचर से, तो बच्चे झिझकते नहीं है, वो मतलब ओपन माइंड से बात करते हैं. अभी तो बंद है, जैसे अभी क्लास 1 तो पूरा उनका लगभग खत्म होने पे आ गया है सेशन, लेकिन जब वो क्लास 2 में भी आएंगे तो भी उतना ही टाइम उनको मैडम एडजस्ट होने में लगेगा, और हमें भी उनको वो उतना टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि क्लास 1 में जैसे स्कूल रेडनेस प्रोग्राम होता है उसके तहत हम बच्चों को पूरा फैमिलियर कर देते हैं और बच्चे फैमिलियर हो भी जाते हैं. तो सबसे ज्यादा बोथर तो वही हो रहा है कि बच्चे फेस टू फेस मोड में हम उसको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस तो हो रही है, लेकिन जो बच्चे जो जैसे बोल नहीं पाते हैं, झिझकते हैं, वो वैसे ही है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो उन्हीं को होगा. जी मैडम.
Okay, thank you, sir. So you're worried about the children who are not interacting and they're not actively participating in these sessions. So, Yes, but then, sir, every problem has a solution. So, could you please Yes. tell me how are you coping up with this issue? What best are you doing? How are you coping up with this issue, sir? मैडम इसके लिए तो जैसे हमने क्लास 1 के जैसे 4 ग्रुप डिवाइड किए थे और उसमें 10 to 12 बच्चों को डिवाइड किया था ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा समय दे पाए, 1 to 1 स्टूडेंट उनको इंटरेक्ट कर सके, है ना। जैसे अभी तो जब हम क्लास लेते हैं तब 51 बच्चे होते हैं या 40 से अबव ही होते हैं। तो जब हमने क्लास 1 स्टार्ट किया था उसके पहले हमने उनको ग्रुप में डिवाइड किया था ताकि वो फैमिलियर हो जाए, फिर उनको मिक्स किया था ग्रुप वाइज, लेकिन तो भी कुछ बच्चे नहीं बोल पाते मैडम। तो एक वही था कि हम उनको अब ज्यादा से ज्यादा समय दे पाए, वही एक है मैडम उनके लिए। तो Thank you for sharing, and we do hope that you all think on this line and you get new ideas how we can make such children also actively Yes, madam. participating in the class. Yes, sir. Thank you. Any other teacher, please? Anyone else? Any other teacher would like to interact on this? What bothers you the most? यस मैम, मैं योगेश शर्मा हूँ मैम। नमस्कार मैम। बोलिए सर। हाँ मैम, नमस्ते सर। फेस टू फेस के अलावा सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो नेटवर्क की आती है। तो बहुत से बच्चों के यहाँ नेटवर्क नहीं है और बीच में या फिर नेटवर्क की वजह से वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम होती है टीचर को भी और बच्चों को भी समझने में। तो ये काफ़ी हाँ सर बोलिए। हाँ, मैं ये बोल रहा मैम, जैसे नेटवर्क की वजह से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं बच्चे, तो वहाँ पे काफ़ी फिर प्रॉब्लम आती है बच्चों को भी दोबारा से वो सारा समझने में और टीचर को भी, क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है और दोबारा से फिर वो समझाने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है टीचर को, स्पेशली मैथ में। क्योंकि हिंदी इंग्लिश क्या है, स्टोरी होती है, वहाँ पे थोड़ा बहुत पेरेंट्स भी हेल्प कर देते हैं, पर मैथ में क्या है वो फिर वो पूरा ही क्वेश्चन दोबारा से टीचर को समझाना पड़ता है। तो नेटवर्क की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आती है, स्पेशली मैथ में। Thank you. So you are discussing about the network issue, sir. So then please highlight on how are you coping up with this issue, sir? हाँ, इसके लिए मैम जैसे क्लास होती है, इसके अलावा भी हम वीडियोस बना सकते हैं बच्चों के लिए, ताकि जो बच्चों को जिनके यहाँ नेटवर्क इशू है या फिर स्लो नेटवर्क है, जो एकदम से मीटिंग में नहीं जुड़ पाते, तो उनके लिए यूट्यूब पे हम डाल सकते हैं या उनको व्हाट्सएप पे वो वीडियो सेंड कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका सोल्यूशन हो सकता है। Thank you, sir. Nice to know that yes, you all are taking these efforts. Thank you. Any other teacher would like to interact on this? Okay, so let's move on to the next question. What are your suggestions to the parents or the guardians of the students of class 1? Teachers, I would like to know any suggestion from or your views for the parents from your side. Any suggestion? योगेश सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, यस मैम। जब टीचर पढ़ाते हैं मैम बच्चों को, तो वहाँ पे पेरेंट्स बैठे होते हैं, तो वो काफ़ी हेल्पफुल भी होता है टीचर के लिए, क्योंकि उनको थोड़ा इजी रहता है फिर समझाने में। पर कई बार क्या होता है, कुछ पेरेंट्स बच्चों को खुद ही उसका आंसर बता देते हैं, तो वहाँ पे फिर वो आंसर बच्चे के ना होकर पेरेंट्स के होते हैं, तो वहाँ पे फिर हमें पता नहीं चल पाता बच्चा कितना समझ पाया है। और ये बहुत बार होता ही है, क्योंकि पेरेंट्स का होता है कि मेरा बच्चा आंसर दे, मेरा बच्चा आगे आए, तो वहाँ पे वो खुद ही आंसर बता देते हैं और फिर वो टीचर को समझने में दिक्कत होती है कि ये आंसर इसका बच्चे का है या पेरेंट्स का है। थैंक यू सर। यस, हाँ पंकज सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? एनी सजेशन? सर माइक ऑन कर दीजिए, माइक ऑन कीजिए सर। जैसे मैडम पेरेंट्स को कंट्रीब्यूशन तो हम बोल ही सकते हैं ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, ऑनलाइन स्पेशली, क्योंकि स्पेशली जब चाइल्ड 1-2 के क्लासेस जब होते हैं तब पेरेंट्स तो उनके साथ रहते ही है, और क्लास 1 के पेरेंट्स है अभी वो तो स्पेशली कंट्रीब्यूशन दे ही रहे हैं, उनके एफर्ट्स को तो हम बोल भी नहीं सकते। लेकिन अब उनको और क्या कर सकते हैं, जैसे अभी योगेश सर ने बोला, वो बहुत बार होता है कि पेरेंट्स ही आंसर देते हैं, है ना। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे कोई पेरेंट्स सभी नहीं, कि बच्चे को मोबाइल के आगे बिठा देते हैं और कहीं और चले जाते हैं, और फिर जब हम आंसर पूछते हैं तो बच्चे को फोन हैंडल करके नहीं आता है, ताकि कभी वो म्यूट नहीं कर पाता है या कुछ, तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है। इसलिए हमने कहा था कि पेरेंट्स को बच्चे के साथ रहना बहुत जरूरी है मैडम। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि तो स्पेशली 3, 4, 5 क्लासेस के बच्चों के साथ होता है कि बच्चे को पेरेंट्स मोबाइल दे देते हैं और अपने काम में लग जाते हैं,
लेकिन उनको पता ही नहीं चलता है कि अपना बच्चा क्लास अटेंड कर रहा है, कि वो क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन मैडम इधर वो वीडियो गेम खेल लेते हैं, गेम खेल लेते हैं, यूट्यूब पे कुछ देख लेते हैं, कार्टून देख लेते हैं, और उनको पता ही नहीं होता है कि क्या चल रहा है। ऐसा बहुत बार हुआ है। तो यही बात है कि पेरेंट्स भी ध्यान दें। जी मैडम। Thank you, sir. Sir, now I would like to know what additional assistance you think from the school or RO will be of great help in this online teaching. Teachers, please do interact on this. Any assistance from your school or from the RO office you would like to have? Teachers, please, if you want any assistance from the school side or from the RO side, you can please share. नमस्ते मैम, मेरा नाम शंकर मनोहर है, प्राथमिक शिक्षक। हाँ सर, बोलिए। हाँ सर, नमस्ते। जी मैम, जब हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तब बहुत सारी कंटेंट, कोई लाइब्रेरी हुई, कंटेंट लाइब्रेरी, तो हमें वहाँ से क्लास वाइज और लेसन वाइज ये कंटेंट मिले तो शायद बहुत बेटर रहेगा मैम। थैंक यू। Thank you, sir. Okay, thank you all the teachers for sharing your valuable suggestions and the experiences. Now let's move on to the parents. Now let's move on to the students. प्यारे बच्चों, आप तैयार हैं? Okay. बस ये बात ध्यान रखनी है कि एक समय एक ही बच्चा इंटरैक्ट करेगा ताकि हम सबकी बात ध्यान से सुन पाए। सबसे पहला सवाल ये है कि ऑनलाइन क्लास में आप सबसे ज्यादा क्या पसंद करते हैं? सबसे ज्यादा अच्छी चीज ऑनलाइन क्लास में आपको क्या लगती है? क्या चीज आप सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं? मैम वर्कशीट। एक एक करके बोलेंगे। अपने माइक म्यूट रखिए। हाँ अनिल जी, प्लीज आप अपने बच्चे को बोलने दीजिए। हाँ प्लीज बोलिए मैम। लाइव वर्कशीट मिस करते हैं। ओके, नहीं आपको सबसे अच्छा क्या पसंद है बेटा? क्या अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? क्या आपको सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे वो लाइव वर्कशीट बोल रही है। अच्छा, लाइव वर्कशीट बोल रही है, उसको लाइव वर्कशीट पसंद है सॉल्व। Thank you, ma'am. Yes, please mute your mic so that I can interact. Welcome, beta. Welcome. मुझे प्रॉब्लम होती है थोड़ी। Yes, any other student? हाँ सोनम बेटा बोलो। बोलो बेटा। मैम मुझे ना सब पसंद है। आपको सब कुछ पसंद है, लेकिन जो सबसे ज्यादा पसंद है वो बताओ। ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको सब पसंद है, लेकिन जो सबसे ज्यादा? हिंदी। अच्छा, आपको हिंदी अच्छा लगता है पढ़ना। ओके, थैंक यू। अच्छा, हिंदी में भी क्या बताओ, कुछ बोल सकते हो? क्या चीज हिंदी क्लास की सबसे ज्यादा पसंद है आपको? कहानी सुनना। ओके, थैंक यू बेटा। हाँ, और कोई शेयर? अपना बेटा माइक म्यूट कर दो। थैंक यू। हाँ यस कनक बेटे बोलो। हिंदी के सर। अच्छा, आपको हिंदी क्लास अच्छी लगती है। ओके, थैंक यू बेटा। और भी कोई बोलना चाहते हैं? हाँ त्रिशा बेटा, आप कुछ बोलना चाहते हो? मैं त्रिशा का है नंबर। हिंदी और मैथ अच्छा लगता है। हिंदी और मैथ्स पढ़ना। अच्छा, मैथ्स में क्या अच्छा लगता है? मैथ्स में कौन सी चीजें? मैथ्स की क्लास में सॉल्व करना अच्छा लगता है सम्स को। ओके, थैंक यू बेटा। हाँ, और भी कुछ कोई बोलना चाहते हैं बच्चे? मुझे हिंदी और ओके, एक एक करके बोलेंगे बेटा। हाँ हिना, अनन्या बेटा अपना माइक म्यूट कर दो। एक एक करके मैडम सबका नाम लेंगे, ठीक है? अनन्या बेटा अपना माइक म्यूट कर दो। थैंक यू। हाँ बेटा बोलो। हिना। मैम माय नेम इज तफजुल शेख। हाँ तफजुल बेटा बोलो। मैम मुझे सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा मुझे जो पसंद लगता है वो है इंग्लिश और ईवीएस। वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। मैं अच्छा, उस इंटरेस्टिंग में क्या अच्छा लगता है वो तो बताओ। अच्छा, वो एनिमल्स होता है, बर्ड्स और स्टोरीज और बस।
ओके ओके, सो आपको एनिमल स्टोरीज पसंद है. वेरी नाइस टू नो. थैंक यू बेटा. अपना माइक म्यूट कर दिया. थैंक यू बेटा. और भी कोई कुछ बोलना चाहते हैं प्यारे बच्चों? हाँ अन्या बोलो. बोलो अन्या बेटा. गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून. मैम मुझे गुड आफ्टरनून और आपकी बहुत पसंद है. क्या पसंद है? फिर से बोलो. ईवीएस सब्जेक्ट अच्छा लगता है. ओके. ईवीएस में क्या अच्छा लगता है बेटा? बॉडी पार्ट्स, वो एनिमल्स. ओके. अगर हमारा स्कूल शुरू होता तो शायद हम ये सब बाहर जाके देख पाते हैं ना, लेकिन अभी तो हमें ऑनलाइन क्लास में ही देखना पड़ रहा है. थैंक यू फॉर शेयरिंग बेटा. अपना माइक म्यूट कर दो बेटा. थैंक यू. हाँ विजेंद्र बेटा बोलो. हाँ वीर बेटा बोलो. मुझे नहीं क्या मैथ पसंद है. आपको मैथ अच्छा लगता है? ओके. मैथ्स में क्या चीज आपको सबसे अच्छी लगी जो सर ने पढ़ाई? सॉल्व करना. ओके. एडिशन अच्छा लगा. वेरी नाइस. आपके मम्मी पापा भी बैठते हैं आपके साथ, खेलते हैं आपके साथ एडिशन में कुछ? हाँ या ना? हाँ. ओके. थैंक यू बेटा. हाँ और भी कोई कुछ बोलना चाहते हैं प्यारे बच्चों? हाँ कनक बेटा आपका माइक ऑन है, बोलो. मुझे ना सभी टीचर्स पसंद है. मुझे मैथ और हिंदी पसंद है. ओके. थैंक यू बेटा. बस एक बात का ध्यान रखिए, सारे बच्चे एक साथ माइक ऑन नहीं ऑन करेंगे, ठीक है? मैडम आपका नाम लेगी तब आप अपना माइक ऑन कीजिए. थैंक यू. यस. अन्या बेटा बोलो. आप बोलो अन्या बेटा. गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून. सभी टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और मैथ्स में मुझे सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन बहुत पसंद है. Thank you. So you are enjoying addition and subtraction. Very nice to know. हाँ. शिल्पा बेटा. हाँ एक मिनट करके. हाँ शिल्पा बेटा बोलो. बोलो. मुझे मैथ्स और ईवीएस पसंद है. मैथ्स और ईवीएस पसंद है. ओके. थैंक यू. अपना माइक म्यूट कर दो. कनक बेटा अपना माइक म्यूट पे रखो. कनक बेटा. थैंक यू. हाँ भास्कर आईडी. हाँ बेटा आप बोलो. कुटे बेटा बोलो. हाँ बोलो. मुझे सब टीचर और सर बहुत पसंद है. लेकिन आपको क्या चीज सबसे ज्यादा पसंद है? बोलो. सोच रही है. ओके. हाँ बोलो. बोल सकते हो. अच्छा मैं आपके पास फिर से आऊंगी, ठीक है? ओके ठीक है. अपना माइक म्यूट कर दो बेटा. थैंक यू. हाँ बेटा आप बोलो. शेख बेटा. यस मैम. ऑल टीचर्स टीचिंग वेल मैम. और मुझे हर सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्टिंग आता है. आपको सब सब्जेक्ट्स इंटरेस्टिंग लगते हैं. वेरी नाइस टू नो. थैंक यू. ओके. अब जैसे आपको कुछ चीज पसंद आती है. हाँ सपना बेटा आप कुछ बोलना चाहते हो? तिवारी बेटा आपका माइक ऑन है. हाँ बोलो बेटा. यस मैम. मुझे हिंदी अच्छी लगती है और मैथ्स अच्छी लगती है. हिंदी में मुझे कविताएं पढ़ना अच्छा लगता है और मैथ्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन. थैंक यू बेटा. सो यू एंजॉय पोएम्स. वेरी नाइस. थैंक यू. हाँ संगीता बेटा आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? दत्तात्रेय संगीता कुछ शेयर करना चाहते हो बेटा? अपना माइक ऑन करके बोलो. मेरा नाम अंशुमन है मैम. हाँ अंशुमन बेटा बोलो. मुझे मैथ सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है? मैथ्स अच्छा लगता है. ओके. थैंक यू. ओके. जैसे आप बहुत सारी चीजें ऑनलाइन क्लासेस में एंजॉय कर रहे हैं, वैसे कुछ ऐसी भी चीजें होंगी जहां आपको डिफिकल्टीज आती होंगी, आपको तकलीफ महसूस होती होगी इस ऑनलाइन क्लास में, जो आपको लगता होगा कि नहीं
हम अगर ये स्कूल में होते तो शायद ये हमारे साथ प्रॉब्लम नहीं होती। तो ऐसी कौन सी डिफिकल्टीज हैं जो आपको ऑनलाइन क्लास में महसूस होती है? बच्चे इस पे बोलेंगे अभी एक एक करके। ऐसी कौन सी डिफिकल्टीज है? हाँ इंदल बेटा बोलो। एक एक करके। तिवारी बेटा अपना माइक म्यूट करो। हाँ इंदल बेटा बोलो। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। बोलो बोलो बेटा। नेटवर्क इशू आपके लिए प्रॉब्लम है, आप बोल रहे हैं। हाँ बोलो। हम उस तक फिर से पहुंचने की कोशिश। मैम ईवीएस की बुक चेंज हो गई है। हम उस तक फिर से पहुंचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक कोई और बच्चा जस्ट अपना हाथ भी ऊपर कर सकते हैं सो दैट। हाँ शिल्पा बेटा बोलो। ऑनलाइन क्लास में आवाज अटकती है। ओके, ऑनलाइन क्लास में आवाज अटकती है, सही कहा आपने। यस, लेकिन क्लासरूम में ऐसा नहीं होता है। जोर से बोलना। थैंक यू बेटा। हाँ ऐश्वर्या बेटा बोलो। महेश्वरी महेश्वरी महेश्वरी, ओके महेश्वरी बेटा बोलो। क्या प्रॉब्लम लगता है आपको? कुछ बच्चे मेरे बीच में आते हैं तो मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिलता। अच्छा, बीच में बच्चे बोलते तो आपको मौका नहीं मिलता। ओके, थैंक यू फॉर शेयरिंग बेटा, थैंक यू। हाँ कनक बेटा आप कुछ बोलना चाहते थे? काया मेरा नाम। हाँ काव्या बोलो बेटा। काया। काया, ओके बोलो बोलो। आपको क्या प्रॉब्लम लगती है ऑनलाइन क्लास में? टीचर नेटवर्क जाता है ना तो क्लास हो पाएगी। नेटवर्क इशू की वजह से आपको दिक्कत आती है। ओके, थैंक यू बेटा। और भी कोई कुछ बोलना चाहते हैं बच्चे? जैसे वीडियो कभी अच्छी नहीं दिखती। क्या अच्छी नहीं दिखती बेटा, फिर से बोलो। वीडियोस ठीक से नहीं देख पाते आप। ओके ओके, थैंक यू फॉर शेयरिंग। और भी कोई बच्चे? हाँ बोलो शेख बेटा। मैम मेरा नाम तफज़ुल है। मैम मुझे अगर स्कूल ओपन हो गई तो सब हमारे ऑनलाइन क्लासेस की प्रॉब्लम्स और सभी ऑनलाइन क्लासेस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अच्छा ओके, जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब सॉल्व हो जाएंगे अगर स्कूल शुरू हो गए तो। ओके ओके, थैंक यू। सो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी हमारी। सो लेट्स होप कि ये जल्दी से जल्दी सिचुएशन ठीक हो जाए और हमारे सारे बच्चे वापस स्कूल आ जाए। वी विल प्रे फॉर दिस। थैंक यू बेटा। और भी कोई बोलना चाहते हैं प्यारे बच्चों आपकी डिफिकल्टी के बारे में? जस्ट हाथ खड़ा कर दीजिए अगर आप शेयर करना चाहते हैं कुछ। ओके हाँ यस बेटा, बोलो बेटा। ऑनलाइन क्लासेस में आवाज ही अटकती है। ऑनलाइन क्लास में आवाज अटकती है, दैट इज अ डिफिकल्टी। ओके ओके, थैंक यू बेटा। थैंक यू बेटा। अब देखिए आप लोग स्कूल में अगर होते तो अपने क्लासमेट से मिलते, उनके साथ खेलते, उनके साथ टाइम स्पेंड करते, लेकिन ये तो नहीं हो पा रहा है बिकॉज वी आर स्टडिंग इन द ऑनलाइन क्लासेस। तो फिर आप अपना बाकी का समय कैसे व्यतीत करते हैं? क्या करते हैं आप ऑनलाइन क्लासेस के अलावा? क्योंकि आप तो फ्रेंड से नहीं मिल पा रहे हैं। हाँ बोलो बेटा, राजपुरे बेटा बोलो। टीचर मेरा नाम श्रिया है। ओके श्रिया बेटा बोलो। टीचर मैं म्यूजिक क्लास को जाती हूँ और कराटे को भी। वेरी नाइस। सो यू आर लर्निंग न्यू थिंग्स ऑल्सो। वेरी नाइस टू नो। थैंक यू बेटा। और भी बच्चे आप क्या करते हैं? हाँ मुझे ना मैं लूडो और कैरम। अच्छा, तो आप घर में लूडो और कैरम खेलते हैं। वेरी नाइस गुड। पढ़ाई के अलावा यस खेल भी जरूरी है, तो आप खेलते हैं घर में। आपकी आवाज नहीं।
कार्टून भी देखते हो? ओके, थैंक यू बेटा। अपना माइक म्यूट करो। हाँ अनन्या बेटा बोलो। मैम तो ये मैं कभी कभी घर पे ड्राइंग निकाल लेती हूँ, क्राफ्ट देख करती हूँ, कुछ भी बनाती रहती हूँ ऐसे दिन भर। ओके, सो आप अपना टाइम ड्राइंग बनाने में स्पेंड करती हैं। नाइस टू नो। हाँ बेटा बोलो बोलो। हाँ हाथ खड़े किया आपने, माइक ऑन करो। मैं ड्राइंग बनाता हूँ, जीके पढ़ता हूँ और अपने टॉयज के साथ खेलता हूँ। थैंक यू बेटा। हाँ बेटा, हाँ बोलो बोलो। कनक बेटा बोलो। कनक बेटा बोलो। मैं ट्यूशन में जाती हूँ। अच्छा ओके ओके, लेकिन आप पढ़ाई के अलावा और क्या करती हैं? बॉक्सिंग सीखती हैं आप? ओह माय गॉड, वेरी नाइस टू नो। ओके, सो यू आर लर्निंग दैट, वेरी नाइस। सो आपको एक्टिविटीज, अदर एक्टिविटीज ऑल्सो यू आर इंटरेस्टेड इन। नाइस, नाइस टू नो। थैंक यू बेटा। और भी कुछ बोलना चाहते हैं बच्चे? हाँ बेटा बोलो। मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलो बोलो बेटा। मैम मैं रूबिक क्यूब से खेलता और हाउस बिल्डिंग। Very nice. Okay, so that helps to increase your mental state level also. Very nice to know. हाँ बेटा आप बोलो, आपने माइक ऑन किया है। हाँ बोलो बेटा। मैम मैं संगीत क्लास जाती हूँ। वेरी नाइस। हाँ सब, हाँ तिवारी बेटा बोलो। मैम मेरा नाम सक्षम है। ओके सक्षम बेटा बोलो। मैं कैरम खेलता हूँ और चेस खेलता हूँ और ड्राइंग निकालता हूँ। वेरी नाइस, थैंक यू। ओके हाँ बोलो बेटा। नत्रक बेटा बोलो। मैं टेरिस पे क्रिकेट खेलता हूँ। Okay, you spend your time in playing cricket. Very nice. Thank you beta. So, other than teaching, other than learning also, so you are engaging your free time in the learning different activities. Very nice to know that. अच्छा ना, अब आप ये बताइए कि ऑनलाइन क्लास में ऐसी भी कोई बात है जो आपको पसंद नहीं आ रही है? कुछ बच्चे तो इस पे बोल चुके हैं, लेकिन अगर और भी कोई कुछ बोलना चाहता है कि ऑनलाइन क्लास में वो चीज आपको पसंद नहीं आ रही है, इस पे कुछ बोलना चाहते हैं जो आपको अच्छी नहीं लग रही है ऑनलाइन क्लास में? इस पे कोई बोलना चाहते हैं? हाँ सालवी सर प्लीज अपना माइक ऑन कर दीजिए ताकि बच्ची बोल पाएगी। हाँ बोलो बेटा। आहे ना टीचर जो बोलते ना कि मला है ना समझतच नाही। ओके, कई बार आप नहीं समझ पाते हैं। ओके, सो दैट यू डोंट एंजॉय, क्योंकि पूरी बात नहीं पहुंच पाती है नेटवर्क इशू की वजह से, हो सकता है। यस आई कैन अंडरस्टैंड दैट। और भी कोई कुछ बोलना चाहते हैं प्यारे बच्चों कि ऑनलाइन क्लास की ये बात आपको पसंद नहीं है? मैम मैं फ्रेंड्स नहीं बना पा रहा। ओके, आप फ्रेंड्स नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि आप ऑनलाइन के थ्रू जुड़े हैं। ठीक है, तो हमको प्रेयर करेंगे कि ये जल्दी से कोविड-19 चला जाए और हम सब स्कूल में जल्दी से वापस आ जाए, है ना, ताकि हम हमारे नए फ्रेंड्स से मिले और उनके साथ इंटरेक्ट करें। थैंक यू डियर चिल्ड्रन। हाँ बेटा आप बोलो। यस, आपने हाथ ऊपर किया। यस मैम, मुझे ना जो बच्चे अनम्यूट नहीं करते हैं, वो जब मैं बोलता हूँ जब कुछ प्रॉब्लम होती है मैम। That difficulty you are facing in the online classes because sometimes मेरी लिंक टूट जाती है मैम। आपकी लिंक टूट जाती है। सही है, एकदम सही है। थैंक यू फॉर शेयरिंग बेटा। Okay. Very big thank you to all my dear children, those who have interacted in this session. आप सभी को प्यारे बच्चों धन्यवाद। And now I would like to request our principal sir of KV Yavatmal
Sir, please interact on this point, share your views, sir, and give us the suggestions for effective implementation of online classes, both quantitatively and qualitatively, sir. Please, sir. Principal, sir. Principal, sir, I would like you to interact, share your views, sir. Sir, you're not audible, sir. Yes, ma'am. Yes. Joined. Thank you, sir. Thank you for this wonderful session, madam. You have taken with the parents and the students, and very frankly and freely they have expressed their views. Even I could see today that children were very outspoken. Even parents, they have given their views very freely. So that I could also know a few new points that what obstacles they have faced during this online teaching. So, madam, nowadays the inspections are going on. So, what I have seen that the teachers, when they take their classes, they are either sitting or they are standing. So, what I observed that likewise in the offline teaching, teacher uses his body gestures, body language. So they should use that so that the other children, those who are attending online classes, they will also be active. Because what I am seeing that if a teacher is sitting and teaching, so even students, they are feeling it tiresome. So they should also be active while they're actual teaching, so that all the students, those who are attending, they are also attentive and they are understanding the concepts given by the teacher. Madam, what I suggest that not only the subject content to be delivered by the teachers, but sometimes some entertaining videos also to be shared related to the subject and topic. Because children, they like the most the videos, the pictures, the animations they like. So it is a request to the teachers, and I would wish that all the teachers should share the related entertainment videos so that they can enjoy their classes and correlate with their content. Online activities should be conducted, madam, in a very small groups. One facility is there in the Google Meet, that room facility, so that all the children of the class can be divided into small groups and teacher can interact in the small group, so that major of the interaction can be taken place, and what the teacher expects from the student, that is what is the level of the understanding, can be achieved. Because our alternate goal is that how much the students are learning and what is the output. So teacher can get the maximum output if they attend the children or they teach the students in a small groups. Not always, but sometimes this activity to be conducted, ma'am. What I observed, madam, when teachers, they use the interactive board, while they are online teaching, if the teacher uses their interactive board, even whiteboards, and if the while using those whiteboards, if the teacher are using the color paints, different colors they are using, so especially in the primary, even in the secondary, I have seen that children, they show their interest, because nothing has to spend by the teacher, but students, they take interest when the colorful paints are being used by the teachers. And some of the teachers, they are using also, madam. It is a good thing. Madam, what happens, apart from the regular teaching, teacher, they assess to the students, but the number of assessment through their live worksheet or other worksheets or even PDF files, it should be increased. Because in the name of testing, children, they get alert themselves. Teachers, they are taking the assessment, but the number of the assessment to be increased, so that student and parents will feel that after this topic, some exam going to be take place. So number of assessments should be increased, ma'am. This is one of the point.
It is seen that, madam, students enjoying the live worksheets. So if the students liking is more in the live worksheets, so it would be request to my teachers to increase the number of live worksheets, because it is being taken by the students and the parents very seriously, and the students are enjoying these live worksheets. Madam, to make this enjoyable online teaching learning process, the parental approach and the assistance and the help of the parent is equally important, because whatever comments given by the students and the parents, I was listening to it. What I have come to know that there are so many issues. So if the parents are assisting their children at home while teaching or after the teaching, so their help will also be a great help for this teaching learning process, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, sir. And I assure you, sir, the teachers are listening to your words of suggestions, and they will do the needful to make this online teaching very interesting and successful for our students, sir. Thank you, sir. We have with us our most respected Shri S.P. Patil, sir, in charge Deputy Commissioner, Mumbai Region. So I would like, sir, to share and enlighten us with the initiatives and approaches taken by KVS for the online teaching learning experiences for class 1 students. Sir, please, sir. Thank you, madam. Good afternoon, everyone who are on the screen today. As we have noticed that so many areas our children also have shared, our parents also freely they have interacted with all of us. Now, when online admission started, that time also pandemic was the major issue. But really, our parents they have cooperated and they have submitted their applications online. And after submitting the online applications, when time came to request the parents to visit the lab physically, so it was really a big issue, and a lot of risk was also involved leaving the homes and reaching to the school. Accordingly, we have decided to call the parents in small lots by taking all the precautions of SOP of pandemic 19. Accordingly, parents have really cooperated, and in small groups they visited the Vidyalaya and they have admitted their children. Now, after admission, then time came to start the classes. Now, being small kids, छोटे बच्चे होने की वजह से कि उनको ऑनलाइन क्लासेस कैसे शुरू किए जाए, इसलिए हमारे सामने एक बड़ा एक प्रॉब्लम था. So now what we decided, we have first train our teachers who are handling class 1 and 2, and separately we train our headmistress also or headmasters. एक बार हमें टीचर्स को जीट मुंबई की तरफ से ट्रेनिंग देने के बाद they have become quite comfortable in using the online mode of teaching. साथ में हमारे पेरेंट्स का भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव रहा कि जो जो आवश्यकता थी वो आवश्यकता के अनुसार भी हमारे पेरेंट्स आगे आए. उन्होंने बच्चों के साथ बैठकर उनको भी गाइड करते हुए, जो भी हमारे डिवाइसेस थे, किसी घर में मोबाइल थे, किसी वहाँ पे लैपटॉप या पीसी थे, तो एनीवे ये समय की आवश्यकता थी. तो कीपिंग दिस चैलेंज इन माइंड, तो सभी का एक सहयोग मिलता रहा और ये चैलेंज को सभी ने एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेते हुए एक साथ बच्चे भी जुड़ गए, पेरेंट्स जुड़ गए और हमारे टीचर भी जुड़ गए. देन वी स्टार्टेड आवर रेडीनेस प्रोग्राम, हाउ टू मेक द चिल्ड्रन रेडी फॉर द स्कूल. जब फिजिकली आते थे तो अलग बात थी, बट ऑनलाइन उनको कैसे हमें फैमिलियर किया जाए स्कूल सिस्टम से या स्कूल फंक्शन से. तो शुरू में हमने एक एक बच्चे और एक एक अभिभावक को बात करने के लिए कहा. तो टीचर से शुरुआत की इनिशियली, तो टीचर्स को एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला हमारे पेरेंट की तरफ से. तो 1-to-1 पहले इंटरेक्शन हुआ बच्चों के साथ, पेरेंट के साथ. तो धीरे धीरे हमें लगा कि बच्चे भी कंफर्टेबल हो गए और हमारे पेरेंट्स. देन वी जस्ट टोल्ड देम टू गो विद स्मॉल ग्रुप ऑफ 5 चिल्ड्रन, 5 पेरेंट्स टुगेदर. तो 5 बच्चे हमने जोड़ने की कोशिश की. देन अगेन वी गॉट वेरी गुड रिस्पांस फ्रॉम द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन. देन जब हमें एक कॉन्फिडेंस आया कि यस हमारे बच्चे भी फैमिलियर हो रहे हैं, देन वी डिवाइडेड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स कि 50% को भी हम एक दिन बुलाएंगे, 50% को अलग लॉट में बुलाएंगे. तो दो लॉट में हमने जब शुरू कर दिया तो तभी भी रिस्पांस काफी अच्छा रहा. आज लगा 50% कंफर्टेबल हो गए, तो फिर भी हमने पूरा क्लास को ऑनलाइन कर दिया. तो ऑनलाइन क्लास शुरू हो गए तो छोटी मोटी डिफिकल्टीज आती थी, जैसे कि हमारे प्यारे बच्चों ने बताया कि बच्चे माइक म्यूट रखना चाहिए, तो क्वेश्चन पूछती सब अनम्यूट कर लेते हैं, फिर वो पूरा केओस हो जाता है.
क्लियरली, आंसर भी बताया तो समझ में नहीं आता है। हमने बार बार जब भी हम ऑनलाइन क्लासेस ऑब्जर्व करते थे या मुंबई से रीजनल ऑफिस से हमने भी ये सब नोटिस किया, तो हम तुरंत इमीडिएटली हम प्रिंसिपल को शेयर करते थे और प्रिंसिपल अपने टीचर को शेयर करते थे कि आप हमारे बच्चों को रिक्वेस्ट कीजिएगा कि प्यारे बच्चों इंस्ट्रूमेंट को कैसे यूज करना है, कब आपको वीडियो ऑन रखना है, कब आपको माइक यूज करना है, कब अनयूज करना है। साथ में पेरेंट्स ने भी काफी सहयोग किया, तो वो भी हमारा सिस्टम अच्छा हो गया। फिर एक स्टेज आ गया कि अभी हम लोग सभी लोग टेक्नोलॉजी से फैमिलियर हो गए, डिवाइसेस से फैमिलियर हो गए। तो आज हमें बहुत खुशी है कि जो भी हमारा रिस्पांस मिल रहा है वो बहुत अच्छा है। और साथ में फिर हमने पूरा रेडीनेस प्रोग्राम पूरा कर लिया। साथ में फिर हमने अल्टरनेट एकेडमिक कैलेंडर होता है कि मंथ वाइज कैसे हमें सिलेबस कवर करना है, कैसे हमें मार्च की तरफ पहुंचना है। तो लाइक आई थिंक पूरा सिलेबस हमारे टीचर्स ने ऑलमोस्ट कवर कर दिया है। कुछ स्कूलों में बाकी है, वो पूरा हो जाएगा। और मेरे ख्याल से फरवरी तक या फरवरी एंड तक तो सब कुछ रिवीजन के साथ बच्चे और टीचर कंफर्टेबल हो जाएंगे। इन बिटवीन हमने स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज भी करवाने की कोशिश की, क्योंकि जैसे बच्चे डिमांड करते हैं कुछ एक्टिविटी मेथड हो, कुछ वीडियोज हो, वो एनिमेशन हो, तो कुछ स्कूलों में काफी अच्छी कोशिश की गई है। जो स्कूलों ने कोशिश की उनको भी हमने सुझाव दिया कि जो बच्चा चाहता है, जो सजेशन में पेरेंट्स से मिलती है, उसकी तरफ हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली दे आर आवर क्लाइंट्स। तो हमारे जो स्टेक होल्डर जो डिमांड है उनकी तरफ फोकस हमने ज्यादा करने की कोशिश की। और फिर हमने एक बार हमारे स्कूल को भी बता दें कि व्हाई डोंट वी गो फॉर द वर्चुअल टूर ऑफ द विद्यालय, क्योंकि पेरेंट्स और बच्चे विद्यालय नहीं पहुंच पा रहे, विद्यालय अपने टीचर को भी मिस कर रहे हैं, विद्यालय को उन्होंने फिजिकली नहीं देखा है। तो बीच में हमने स्कूल का वर्चुअल टूर करवा के बच्चों के साथ वीडियो शेयर किया। तो बच्चों ने अपने विद्यालय का गेट, अपना विद्यालय का ग्राउंड, अपना क्लासरूम्स, उनके लिए जो पार्क होता है विद्यालय में, जो ग्राउंड होता है, ये सब उन्होंने वीडियो के माध्यम से देख लिया। फिर एक बार हमने पेरेंट्स को भी विद्यालय के थ्रू रिक्वेस्ट किया कि आप भी एक पेरेंट टीचर मीटिंग के थ्रू आपके सुझाव दीजिएगा। तो काफी हमारे पास सुझाव आए और समय समय पे हमने वो सुझाव को काफी सीरियसली लिया है। अकॉर्डिंगली वी हैव ब्रॉट द नेसेसरी चेंजेस। और एज ऑन टुडे मेरे ख्याल से पेरेंट के फीडबैक से और हमारे बच्चों के जो इन्वॉल्वमेंट था टीचर के सुझाव से हम लोग यानी मैक्सिमम एक्सटेंड तक हम लोग ऑनलाइन क्लासेस को सक्सेसफुल कर पाए हैं। कुछ एरियाज में डिवाइसेस के थोड़े इश्यूज थे, कुछ एरियाज में नेटवर्क के इश्यूज थे, क्योंकि यवतमाल तो ऐसे कि वहाँ पे नेटवर्क के इश्यूज थोड़ा रिमोट में आता ही से ज्यादा थे। तो स्लोली हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए, लेकिन तभी भी कुछ एरियाज में कमियां छूट गई है। तो हमें उम्मीद है कि अभी जो बचा हुआ समय है इसमें हमारे प्राचार्य महोदय और शिक्षक साथी पूरा कोशिश करते वक्त जो हमारे बच्चे चाहते हैं, जो हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हम उनके अपेक्षा अनुसार वहां तक पहुंचेंगे, ताकि हम क्लासरूम का पूरा सिलेबस पूरा कर देंगे और बच्चों को पूरा फैमिलियर करवा देंगे। और कुछ कमियां छुट्टी होगी तो लेट अस प्रे टू गॉड कि हमें एक अच्छा समय अभी आ जाता है, तो कुछ समय तक हम क्लासरूम के बच्चों को भी विद्यालय बुलाने की कोशिश करेंगे कि हमें लोकल अथॉरिटी परमिट करती है। और अदरवाइज हम क्लासरूम में जब हमारे बच्चे आ जाएंगे तो तब तक वो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। हम एक बार पूरा एक छोटा सा ब्रिज कोर्स जैसा कि बच्चों को पूरा क्लास वन का बेसिक जो मिस हुआ होगा या कुछ कंसेप्ट मिस हुई होगी हम उनको रिवाइज करवा देंगे, ताकि हमारे बच्चे क्लास को अच्छी तरह अटेंड कर पाएंगे। क्योंकि हमें हमारे बच्चों को सिर्फ पढ़ाना नहीं, उनको हमें कल के लिए भी तैयार करना है और आगे वाले समय के लिए उनको हमें तैयार करना है, ये हमारी बड़ी जिम्मेदारी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि समय के अनुसार हम लोग सब उसका ध्यान रखेंगे और हमारे बच्चों को हम आने वाला समय में जो भी चैलेंजेस आते हैं उसके लिए तैयार रखेंगे। तो मैं हमारे सभी बच्चों को धन्यवाद दूंगा कि इतने कठिन समय में, इतने मुश्किल समय में आपने अपने आप को एडजस्ट किया, नई टेक्नोलॉजी के साथ एडजस्ट किया और आपने हम लोगों को काफी सहयोग करते हुए ऑनलाइन क्लासेस चलाने में मदद की। साथ में हमारे सभी अभिभावकों ने अपना अमूल्य समय निकाला, उन्होंने भी बच्चों को मोटिवेट किया, सपोर्ट किया, उनके साथ बैठे और हमें सेशन देते रहे। तो सभी पेरेंट्स को मैं धन्यवाद दूंगा और मैं आश्वासन देता हूँ कि आने वाले समय में आपके कोई भी सुझाव हो हम उसको प्रायोरिटी पे ध्यान रखेंगे एंड विल मेक श्योर दैट हमारे बच्चे कल के लिए एक अच्छे नागरिक के रूप में आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल द पेरेंट्स एंड ऑल द टीचर्स एज वेल एज द प्रिंसिपल फॉर टेकिंग द इनिशिएटिव एंड मेकिंग दिस ऑनलाइन क्लासेस वेरी वेरी कंफर्टेबल एंड सक्सेसफुल। सो आई थैंक एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हमें खुशी है कि आप सब हमारे साथ आज इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़े और अपने विचार और अपने सुझाव हमारे साथ साझा किए। So I would like to express my gratitude to our most honorable DC sir, Shri S.P. Patil, our honorable Assistant Commissioner sir, Shri R. Kalale, Principal J.K. Ramteke sir, Kendra Vidyalaya Yavatmal, teachers, parents and tiny tots of the Vidyalaya.
At the end, I would just like to express my views with a few lines. स्वागत सत्कार से धन्यवाद आभार तक आज हम जुड़े हैं शब्दों के जोड़ से शब्दों के श्रृंगार तक। कुछ वरिष्ठों का आशीर्वाद है, कुछ हमारा प्रयास है कि पहुंचेंगे हम भी आज के शब्दों के उद्गार तक, आज के शब्दों के उद्गार तक। धन्यवाद सभी को, आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू। Thank you, Vinay. Thank you so much. Sir, I am very much thankful to the team of the regional office, the DC sir, AC sir, and the HM madam from Shri Girinagar. Because even I was not sure that whether all the parents will join this meeting today, because yesterday two of the parents, they have taken the leave from their office. So I was really worried. But I am thankful that very nicely that session, the question answer session was conducted by Mrs. Leena, and the strong feedback has been given by our DC sir. Whatever suggestions incorporated in his words, I am sure that I would be able to follow all those suggestions, and we will do as per the requirement of the parents of this Vidyalaya. I thank you one and all who have joined in this meeting, including parents, students, and other people also. Thank you, sir.